This lecture of operating system, we will going to discuss the topic that is the types of operating system. We already discussed about what is the operating system, what is the need of the operating system related concepts like the history of operating system, and now in this lecture we focus on the types of operating system. What is the operating system? Which provides the interface between the user and hardware, the application software and the hardware. So the very first type is the mainframe system, which may reduce the setup time by batching the similar jobs, or we can say that it provides the automatic job sequencing which transfer the control from one job to another. So, in other word, we can say that the mainframe systems are act as sometimes the serial operating system, which means that the jobs, or we can say that the instruction which are provided by the user are executed in first out manner. जो पहले जॉब आएगी, जो पहले वर्क आएगा यूज़र के द्वारा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फर्स्ट एग्जीक्यूट करेगा. द जॉब्स और द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन फर्स्ट आउट मैनर. जो पहले आएगी वही पहले एग्जीक्यूट होएगी. देन इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट में इन this the initial control in monitor, and then control transfer to the job, and when the jobs completes the control transfer back to the monitor. This is back, so provide the back to the monitor. So this is the first type, that is the mainframe system. Now the second type is the batch processing operating system. This type of operating system accept more than one jobs, and these jobs are batched एंड ग्रुप टुगेदर अकॉर्डिंग टू द सिमिलर रिक्वायरमेंट. इसका क्या मीनिंग है कि नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं हमारे पास. फॉर एग्जांपल जॉब्स यहाँ पर क्या मीनिंग है, फॉर एग्जांपल कि यूज़र ने सिस्टम ऑन किया है, वहाँ पर वो एक साइड पे ऑफिस पे वर्क कर रहा है, फॉर एग्जांपल वर्ड पे वर्क कर रहा है, अदर साइड पे पावर पॉइंट पे भी वर्क कर रहा है, वीएलसी प्लेयर भी ओपन है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा रहा है. तो ये क्या है, अलग अलग वर्क है जो सेम सिस्टम पर परफॉर्म हो रहे हैं. तो ये अलग अलग जो वर्क है उन्हें हम जॉब्स भी बोल सकते हैं. तो जो ये जॉब्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जब प्रोग्राम्स हैं, इन सिंपल वर्ड्स, तो यहाँ पर बैच प्रोसेसिंग में क्या है कि नंबर ऑफ़ जॉब्स जो होंगी, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, ये सारी जॉब्स जो हैं इनमें से जो सिमिलर जॉब्स हैं उसे हम अलग एक बैच बना लेंगे, और ऐसे ही बाकी सारी जॉब्स का भी जो जो सिमिलर है उनका एक एक बैच बनता जाएगा. जैसे J1 J2 का एक बैच बन गया, J3 J4 J5 का अलग से बैच बन गया. सो वी एग्जीक्यूटेड ऑल दीज जॉब by making its batch. So we can say that the same nature of jobs make a batch and then executed accordingly. So in other words, whenever the computer becomes available, the batch jobs are sent for the execution and the output is sent back to the user. So it may allow only one program at a time. This type of operating system is responsible for scheduling the jobs according to the priority. इसका क्या मीनिंग है, जो नंबर ऑफ जॉब्स होंगी, जॉब 1 जॉब 2, ये कैसे हो सकता है कि इसे हम शेड्यूल भी कर सकते हैं. शेड्यूल मतलब जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी. फॉर एग्जांपल प्रायोरिटी हम देख सकते हैं कि जो पहले जॉब आई है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, उसका जो बैच है वो पहले एग्जीक्यूट होगा. तो प्रायोरिटी का मीन्स जो ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ फिर कह सकते हैं जो पहले आई है, जहाँ फिर जिसे कम टाइम लग रहा है. फॉर एग्जांपल J1 J2 को 5 सेकेंड लग रहे हैं एग्जीक्यूट होने में, बट J3 J4 5 को कितने लग रहे हैं, 1 मिनट लग रहा है, तो वो ज़्यादा हैं. तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा हुई, जो कम टाइम में एग्जीक्यूट होंगी, तो ये वाली एग्जीक्यूट फर्स्ट हो जाएंगी. दिस इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ प्रायोरिटी टाइप. सो एंड द रिसोर्स रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड द प्रायोरिटी. So jobs are scheduled and executed. So next we have the example. If we have the number of jobs like this, job 1 job 2 up to so on job n, which may provide to the operating system. These jobs, similar jobs, make a batch
and executed accordingly. CPU assigned to these jobs according to their priority and the resource requirement. Next, we have the benefits of the batch operating system. Batch type operating system के first benefit है, it can shift the time of job processing to when the computing resources are less busy. Second, it may allow the system to use different properties for interactive and non-interactive work. Next, what are the problems which may acquire in the batch processing? Lack of interaction between the user and the job, because we have the number of jobs which may make a batch, so there is less interaction between the user and the number of jobs. CPU is often ideal because the speed of the mechanical input or output devices is slower than the CPU. Difficult to provide the desired priority. A job could enter an infinite loop. Infinite loop का क्या मीनिंग है कि जैसे कि एग्जांपल एक की थी कि हमारे पास J1 J2 को कितना टाइम लग रहा है 5 सेकेंड, एंड J3 J4 को कितना टाइम लग रहा है 1 मिनट. तो ये भी हो सकता है कि और भी जॉब्स हैं जिन्हें J3 J4 को 1 मिनट लग रहा है, तो इनसे भी कम टाइम लगे. जैसे 2 सेकंड में कोई और जॉब्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, 3 सेकंड में कोई और हो रही हैं, 4 सेकंड में कोई और हो रही हैं. तो ये वाली जो जॉब है जिसे 1 मिनट लग रहा है, वो क्या है, वेटिंग स्टेट में चलेगी कि वेट करती जाएगी कि पहले वाली कम टाइम वाली कब एग्जीक्यूट होंगी. तो वो क्या होता है, कंटिन्यूसली वेटिंग टाइम पे चला जाता है. डेट इज़ द इनफाइनाइट लूप. Sometimes jobs may enter an infinite loop. So CPU इज आइडियल स्टेट का क्या मीनिंग है कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को एक से मतलब कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम तब पूरा एफिशिएंट होता है जब हमारा CPU जो है वो लगातार वर्क करता चले, CPU यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हो. हमने CPU को कभी भी फ्री नहीं बैठने देना. सो दैट इज़ द मेन पॉइंट. सो CPU एंड द रिसोर्स यूटिलाइजेशन इफेक्टिवली हो. तो ये नहीं है कि हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे वर्क करें बट CPU हमारा फ्री है, तो उससे क्या होगा, हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो जाएगी. तो सो CPU यूटिलाइजेशन इज मस्ट. नेक्स्ट टाइप वी हैव द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम से इंडिकेट हो रहा है मल्टीपल. मल्टी प्रोग्रामिंग मीन मल्टीपल प्रोग्राम्स विच आर एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम. तो सिंपल एक लाइन में इसका आंसर है. बट इन अदर वर्ड्स अगर हमने इसे टेक्निकल टर्म्स में अंडरस्टैंड करना हो कि मल्टीपल प्रोग्राम्स जो होते हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं एक ही टाइम पे, जैसा कि हमने बैच प्रोसेसिंग में जब सीरियल या मेनफ्रेम सिस्टम में पढ़ा था कि ओनली वन जॉब, फर्स्ट में क्या था पढ़ा था कि ओनली वन जॉब इज़ एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम. बैच में ओनली वन बैच is executed at a time, then the another batch entered and then executed. So multiple program कैसे execute हो सकते हैं. तो इसमें क्या है कि हमारे पास कंसेप्ट जो आया जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ जॉब्स हैं. अगर जॉब ऐसी कोई जॉब्स है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा वो एग्जीक्यूट हो जा रही है बट जिसकी प्रायोरिटी कम है वो वेटिंग स्टेट में चली जाती है. तो इनफाइनाइट लूप को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं. उसमें क्या कंसेप्ट है कि हमारे पास मेन ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कैसे होता है कि कोई भी जॉब आती है, CPU अगर फ्री है तो CPU जो है उस जॉब को प्रोवाइड किया जाता है एंड देन CPU वर्क पूरा हो जाता है तो वो जॉब जो होती है वो वर्क होता है वो इनपुट आउटपुट के पास चला जाता है. सो नेक्स्ट जॉब आती है उसे CPU टाइम प्रोवाइड होता है. अगर हम प्रीवियसली वर्क करें कि अगर जॉब 1 आई है वो पहले CPU को एक्सेस करेगी, CPU एक्सेस करेगा, देन इनपुट आउटपुट पे वर्क होएगी, देन वो जॉब क्या है कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगी. उसके बाद जॉब 2 आई, वो उसे CPU दे दिया अगर फ्री है, देन इनपुट आउटपुट के बाद. इसमें क्या हो रहा है कि जब हमारा जॉब 1 जो है वो CPU को यूज़ कर लेती है, CPU एक्सेस टाइम मिल जाता है, आफ्टर डैट वही जॉब 1 जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास चलेगी. उस टाइम ड्यूरेशन में CPU हमारा जो है अब फ्री है.
तो हमने क्या है प्रॉपर CPU यूटिलाइजेशन करनी है, तो CPU को कभी भी फ्री नहीं होने देना। तो यहाँ पर हमारी जॉब 2 जो है उसे हम CPU प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर। तो CPU एक्सेस जो है वो जॉब 2 को मिल गया जब जॉब 1 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करिए, एक्सेस करिए। देन उसके बाद वो जॉब 1 जो है कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगी, उसका वर्क पूरा हो गया। देन जॉब 2 CPU के पास था, वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास चला गया। उस टाइम ड्यूरेशन में भी CPU हमारा फ्री हो गया, तब हमने जॉब 3 को CPU असाइन कर दिया। तो इन दिस वे हम क्या है मल्टीपल प्रोग्राम्स को एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो डेफिनेशन में भी यही है, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट more than one job simultaneously via single processor. Processor is the CPU. It increases the CPU utilization by organizing the job so that the CPU always has one job to execute. क्लियर कंसेप्ट क्लियर कि CPU के पास ऑलवेज एक जॉब तो एग्जीक्यूट करने के लिए होनी चाहिए। जब वो जॉब इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास चलेगी तो नेक्स्ट जॉब जो है उसको हम CPU असाइन कर देंगे। सो all the jobs are enter the system are stored in the job pool मतलब एक के बाद एक वो हमारे पास एक्सेस स्टोर कर लेंगे हम, चाहे वो डिस्क में है या किसी भी रैम मेमोरी में स्टोर कर लेंगे। द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स अ सेट ऑफ जॉब्स फ्रॉम द जॉब पूल इनटू द मेन मेमोरी एंड बिगिंस टू एग्जीक्यूट। क्लियर। तो यहाँ पर हमारी जो है CPU यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो जाती है और हमारा CPU कभी भी आइडल स्टेट में नहीं जाता, फ्री स्टेट में नहीं जाता। सो इन अदर वर्ड्स जो हमारी डिस्कशन अभी हुई है उस पे ही लाइन से, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जॉब मे हैव टू वेट फॉर सम टास्क such as an input output operation to complete. So in multi programming system the operating system simply switch to the another job and execute. Clear. When that job needs to wait, the CPU is switched to the another job and so on. When the first job finish the waiting and gets the CPU back, as long as at least one job need to execute and CPU is never be the ideal state. Clear. The multi-programming operating system use the mechanism of job scheduling and the CPU scheduling. क्लियर। नेक्स्ट वी हैव द एडवांटेजेस क्या है, प्रॉपर CPU यूटिलाइजेशन होती है, इसमें प्रॉपर CPU का यूज़ होता है। यूज़र फील डैट मैनी प्रोग्राम्स आर अलॉटेड CPU ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली, नंबर ऑफ जॉब्स को CPU जो है वो असाइन होता जाता है। डिसएडवांटेज क्या है कि CPU शेड्यूलिंग इज़ रिक्वायर्ड, कि उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जो कौन सी जॉब है जो पहले एग्जीक्यूट करनी है, शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी कि CPU को कैसे असाइन करना है सारी जॉब्स को। टू अकोमोडेट मैनी जॉब्स इन मेमोरी मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड। जब हम सारी जॉब्स को एक बार स्टोर करते हैं डिस्क में एंड देन उसे हम मेन मेमोरी में लेते हैं और तब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं इन केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, देन क्या है मेमोरी मैनेजमेंट का कंसेप्ट जो है कि सारी जॉब्स को कैसे हमने स्टोर करना है, दैट इज़ द मेन कंसेप्ट हियर। सो ये यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट वी हैव द मल्टीटास्किंग। सो द मल्टीटास्किंग मीन्स जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग में था कि मल्टीपल प्रोग्राम्स हमारे एग्जीक्यूटेड हो रहे हैं एट द सेम टाइम, ऐसे ही मल्टीटास्किंग का क्या मीनिंग है, मल्टीपल टास्क हमारे परफॉर्म हो रहे हैं एट द सेम टाइम। सो मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द CPU साइमल्टेनियसली बाय स्विचिंग बिटवीन दैम। मल्टीपल टास्क जैसे कि हमारे पास एक क्या है कि हम वर्ड पे वर्क करें हैं, ईमेल पे वर्क करें हैं, वेब ब्राउज़र है, तो एक ही हमारे पास प्रोसेसर है, तो सारे वर्क हम एक ही टाइम पे कर रहे हैं मान लो एक अपने सिस्टम पे, तो वहाँ पर हमारे पास वो वर्क क्या है मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है कि जो CPU का टाइम है वो हमारा कैसे होता है नैनो सेकेंड्स में। तो नैनो सेकेंड्स में हमारा टाइम होता है इन केस ऑफ कंप्यूटर इन CPU, जब हम किसी भी जॉब्स पे वर्क कर रहे हैं एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो CPU क्या करता है कि 2 नैनो सेकेंड्स जो है
फॉर एग्जांपल 2 सेकंड जो है हर टास्क को असाइन कर देता है कि 2 नैनो सेकेंड्स के लिए वर्ड के लिए असाइन होगा सीपीयू, 2 नैनो सेकेंड्स के लिए मेल के लिए होगा 2 नैनो सेकेंड, वेब ब्राउजिंग के लिए होगा। तो सीपीयू जो है वो जो नैनो सेकेंड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्पीडली जो है वो हमारा सीपीयू स्विच करता है कि हमें लगता है कि हम एक ही टाइम पे कर रहे हैं। सो दिस इज़ द मल्टीटास्किंग प्रोसेस कि सीपीयू जो है इक्वल टाइम डिवाइड कर देता है, स्विचिंग होती जाती है। ये स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि हमें पता नहीं चलता। सो द मल्टीटास्किंग इज व्हेन मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू simultaneously by switching between them. Switches occur so frequently that the user may interact with each program while it is running, as an operating system does the following activity related to the multitasking. First one is the user gives the instructions to the operating system or to a program directly and receive an immediate response. Next, the operating system handles the multitasking in the way that it can handle the multiple operations and execute the multiple program at the same time. Next, we have sometimes the multitasking programming. The multitasking operating system is known as the time sharing system, and these operating systems were developed to provide the interactive use of computer system at a reasonable cost. In other words, a time shared operating system uses the concept of CPU scheduling and multi-programming to provide each user with a small portion of time shared CPU. Clear? Next, we have each user has at least one separate program in the memory. A program that is loaded into the memory and executing is commonly referred to as a process. कोई भी प्रोग्राम हमारे पास स्टोर होता है तो प्रोग्राम क्या है जो हमारी मेमोरी में लोड होता है, एंड और इन अदर वर्ड्स program in execution is known as a process. So when a process execute, program और process में difference है. So program is the set of instruction and the process is program in execution and it is stored into the memory. So when a process execute, it typically execute for only a very short time before it either finish or need to perform input output. There are interactive input output typically runs at the slower speeds, so it may take a long time to complete. During this time, a CPU can be utilized by the another process. Next, we have the operating system allows the users to share the computer simultaneously. Each action or command in a time shared system tends to be short. Only a little CPU time is needed for each user. Last one is, as the system switches the CPU rapidly from one user or the program to the next, so CPU switching जो होती है वो fast होती है. So in that case, each user is given the impression that he or she has his or her own CPU, whereas actually one CPU is being shared among many users. Clear? Next, we have the multiprocessor operating system that we will discuss in the next video lecture.